अगला दो दो बारी पोदा बरसाती का नहीं हो वाहिगुरु जी का खालसा। Today is the time that we are finally कि आज फाइनली वो दिन आ गया जब मैं बहुत टाइम से एक लंबी राइड प्लान कर रहा था, कई सालों से एक लंबी राइड प्लान कर रहा था। एंड टुडे इज़ फाइनली द टाइम दैट आई एम लीविंग फॉर हेमकुंड साहिब। और अभी मैंने ऋषिकेश तक का एक पिट स्टॉप लगाया हुआ है। सुबह के 4:20 हो रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द होल थिंग इज़ दैट आई एम राइडिंग सोलो फ्रॉम माई होम। सो लेट्स गो, लेट्स सी अगर मैं हेमकुंड साहिब पे वहाँ पे मुझे कुछ रैलीज़ मिलती हैं या लोगों की कंपनी मिलती है, मतलब ऋषिकेश वाले गुरुद्वारे से। बट अभी तक मेरी पहली डेस्टिनेशन ऋषिकेश ही है, वहाँ जाके देखेंगे। मैं घर से सोलो निकल रहा हूँ एंड लेट्स गो। मेरी आज की जो आई एम प्लानिंग for today I am planning to either stay in Devriyag or I'll try my best to reach Joshimath. So let's go, let's see. हमारा पहला स्टॉप रहेगा नेशनल मिडवे हाईवे। So let's the journey begin. So guys, कुछ इतनी ही एक्साइटमेंट से शुरू हुई मेरी लाइफ की फर्स्ट सोलो राइड एंड ऑल्सो द मोस्ट लॉन्गेस्ट राइड आई हैव एवर डन, क्योंकि मैं बहुत सालों से क्रेव कर रहा था एक सोलो बाइक राइड को। एंड हेमकुंड हैड ऑलवेज बीन इन माई टू डू लिस्ट एंड ऑल्सो आई एम अ वेरी फ्रीक्वेंट विजिटर टू ऋषिकेश। So every year when I used to visit there at this time, I had always thought कि यार ये जो सब जा रहे हैं ना बाइक पर लगेज टाई करके, मैं भी ये करूँगा जल्दी after buying a bike. So it has been 8 months since I bought my first bike. और बस फिर क्या था? I got to know about the opening of Hemkund Sahib and very instinctively and impromptly I did my registration on the Uttarakhand portal. For the day after the day I was registering, it was very sudden, very impromptu and also surprising for my family. And I was not, let me tell you, I was not supported as well for this, for going solo, for this much long ride. But I just packed my 2 bags of basic clothing, considering the weather requirements, some energy booster foods जैसे dry fruits, घर के बने हुए लड्डू, which my previous trekking trip to Kasol taught me very well that how necessary are these food items are. Next, I packed my basic bike repair kits and lots of courage, dreams, hopes and excitement in the eyes. So abhi I am going with the hope to travel to Joshimath on the first day only because I have seen vlogs of people riding to Joshimath from Delhi in a single day, in a single ride, in a single journey. And that is encouraging for me, but I am taking a chance to stay somewhere before if things don't go my way. Anyways, I'm cruising on the national highway witnessing sunrise. The weather itself is giving the vacation vibes. Also, it's more of a spiritual journey than less of a vacation. और इस ट्रिप पर और इन वास्ट हाईवेज पर मैंने अपनी बाइक की टॉप स्पीड भी टेस्ट कर ली, which was ना I won't reveal it here. और इसके साथ हमने मेरठ को किया क्रॉस within 1 hour and 15 minutes I guess from the Delhi, and riding 1 more hour to find the midway highway stop was closed in the morning and decided to reach Rishikesh itself in the first go. ये बंद कब से हो गया?
Now can you believe सुबह के 6:30 बज रहे हो, 6:30 बज रहे हो, and you find 10 kilometers jam on your way and more than usual crowd till Haridwar. Yes, ये सब हुआ मेरे साथ and I got to experience this because I planned my trip all of a sudden without checking the calendar. What I got to know was it was Ganga Dashera tomorrow and the whole Rishikesh, Haridwar would be tightly packed, jam packed. And to further add up to it, it's the month of June. School और college के बच्चों की छुट्टियां होती हैं यार, हम निकल गए, हम भूल गए ये बातें. So being a biker, I managed to escape somehow this traffic jam and it only cost me 1 hour to do so, whereas people were stuck there from the whole night. And I literally saw people cooking their meals along the Lashkar road. Damn. People were literally cooking their meals and it seemed like they were living there from the whole night. So it was a relief to cross the Haridwar and leave the crowd behind, and I quickly rode to Rishikesh, set up my front camera. Now whenever I enter Rishikesh, it's a whole kind of vibe altogether. It gives a decent chills and homely vibe since I have been coming here from the past 5 years regularly. I have my favorite cafes, favorite spots, favorite activities, and everything is all set to do. So after 5 hours of non-stop riding, which was supposed to be 4 hours from Delhi, I entered Rishikesh, and before anything, I went to my favorite breakfast spot. I fueled up my tank, checked out my mileage, and went to a very famous Gurudwara in Rishikesh. वहाँ पे गया, मत्था टेका और वहाँ बहुत लोगों से बात करी. I inquired about when people will be leaving for Joshimath or for Hemkund Sahib, or if possible there will be any group of bikers available to join. To which I got to know. मुझे ये पता चला कि नहीं, सुनो मेरी बात. ऐसा है कि मैं गया था गुरुद्वारे ऋषिकेश वाले, तो वहाँ मैंने बात करी. वहीं सरदार जी मिले बाहर गेट पर ही. तो उन्होंने बोला कि अगर आपको प्रॉपर जत्थे के साथ जाना है तो आप सुबह निकलो 4:30-5 बजे, वरना जो भी लोग बाहर से आते हैं, जैसे ग्रुप में आते हैं 3-4 के ग्रुप में, तो फिर वो अपने आप ही निकलते हैं. अपने आप निकल गए तो कह रहे लोग तो किसी भी टाइम निकल रहे हैं. 1 घंटे का फ़र्क पड़ा. एंड राइट नाउ 9 बज रहे हैं एंड मैं ऋषिकेश में हूँ. मैं अपनी फेवरेट जगह पर हूँ ऋषिकेश में. दिस इज़ ईराज किचन. आई एम हैविंग अ क्रंची बाउल. बड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट यहाँ पे मिलता है. व्हेनेवर आई कम टू ऋषिकेश आई कम हियर. सो गाइस, अब हम ऋषिकेश से निकल रहे हैं जहाँ मैंने ब्रेकफास्ट किया था इस जगह पे. और जोशीमठ का मैंने मैप्स डाल दिया है. ये मेरे को दिखा रहा है 7 घंटा. तो लेट्स सी कितना टाइम लगेगा. बैग हाँ, ये चलो लेट्स गो. जोशीमठ मुझे 7 आवर्स दिखा रहा है अभी. और अब वही देखते हैं. मैंने बहुत लोगों से अभी डिस्कस किया. अभी 10 बज रहे हैं, 10:17 हो रहे हैं. 2-3 लोगों से मैंने डिस्कस किया. कुछ मेरे को कह रहे हैं कि पूरा जोशीमठ तक जाना वुड बी वेरी हेक्टिक और मैं श्रीनगर ब्रेक ले लूँ. कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि देवप्रयाग रुक जाऊँ व्हाटएवर, या और कुछ ये भी कह रहे हैं कि जोशीमठ तक बहुत इजी है जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और 7 घंटे दिखा रहे हैं, मतलब मुझे 5:21 PM दिखा रहा है. सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है, कहाँ तक पहुँचता हूँ, कहाँ रुकता हूँ. बस ऐसी अभी तक की जर्नी अच्छी है, मौसम भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है. आजकल ईस्टर्न में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए हुए हैं, मिज़ोरम वगैरह में. उन फ्लड्स की वजह से काफ़ी हमारे दिल्ली में भी और उत्तराखंड में वेदर काफ़ी अच्छा हो रखा है. सेम एज वेल है, जून का मंथ है और ऋषिकेश में बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है. एक विंड चीटर पहन के तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, जो कि लगनी चाहिए थी. और लगेज मेरे को लग रहा है मेरा लगेज गिर रहा है यार. इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा एक बार और फिर हम अच्छे से स्पीड बनाएंगे.
पर लगेज एडजस्ट कर लेते हैं। और ये भी मैं बता दूँ, मैंने वाटर प्रूफिंग के लिए एक पॉलीथीन लगाई हुई है और इसकी वाटर प्रूफिंग का भी इंतज़ाम है। शोल्डर बैग की वाटर प्रूफिंग भी अगर मेरे को करनी है तो उसके लिए मैं अलग से कवर लाया हूँ। और अपने लिए भी एक पोंचो, रेनकोट, रेन कवर जिसे बोलते हैं वो लाया हूँ। तो मतलब मैं पूरी तरह से वाटर प्रूफ हूँ। कैमरा भी वाटर प्रूफ है। सो नो वरीज बेबी। अब धूप बहुत तेज़ हो गई है, लेट्स सी क्या होगा। और तो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करके मम्मी को अपडेट देकर अपने लाइव लोकेशन शेयर करके हम निकल गए 10 बजे ऋषिकेश से डिपार्चर किया। और अब जो धूप है ना, ओ भाई, पहाड़ों की धूप। दिस विंड चीटर ग्लव्स फेल्ट सो हैवी along with the helmet and the whole journey was exciting अभी तक, बट अब बॉडी में डिहाइड्रेशन होनी स्टार्ट हो गई। आफ्टर राइडिंग फॉर अनदर 2 hours विद नॉर्मल क्राउड, नॉर्मल था, रूट्स अच्छे थे, पर धूप थी। सो आफ्टर राइडिंग ऑफ 2 hours I entered into देवप्रयाग। तो गाइस बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी मेरे को और बहुत टायर्ड फील कर रहा था, तो मैंने उतर के अभी 1 लीटर पानी पिया और फाइनली मैंने एक स्टॉप लिया है देवप्रयाग में। और अभी मैं देवप्रयाग दिखाता हूँ। दिस इज द देवप्रयाग संगम। बहुत ज़्यादा नींद, डिजीनेस सी हो रही थी और गर्मी अब बहुत ज़्यादा लग रही है। पहाड़ों की धूप वैसे भी तेज़ होती है, पीक पर ऐसे एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट वैसे मज़ा आ रहा है, राइड करने में मज़ा आ रहा है। लेट्स रोल, जल्दी जल्दी चलते हैं। 12:30 हो रहे हैं और 5 घंटे 20 मिनट का रास्ता रहता है जोशीमठ का। लेट्स रोल। The journey from Devrayag to Joshimath wasn't just about the distance. It was about the road. The people, the weather, and the little stories in between. यहाँ मैं रुका था अभी खाना खाने के लिए। खाना ठीक था, अच्छा था, और अब हम यहाँ से निकलेंगे। Sun was blazing, almost like it had something to prove. The heat was sharp, bouncing off the winding hills, testing both me and my bike and my patience. But the curves of the mountains, they had a rhythm of their own. Every twist, every turn pulled me deeper into the journey. On these very roads, I saw something familiar. Sikh pilgrims, बहुत सारे Sikh pilgrims, hundreds of them on their motorcycle, cruising with devotion in their eyes, with their luggage and with their Nishan Sahib on the front of their bike. They're tired, yes, dehydrated, sunburned, arms aching from the weight of the day, but still, there was something more powerful pushing me forward. Excitement, spark, fire, and riding my Meteor 350 for such a long stretch for the first time, honestly, it surprised me. Super comfortable है यार, especially on those hilly curves. It leaned like a dream. I'll talk more about the bike in a separate review, but for now let's ride on. So as the day started fading, weather shifted from scorching heat to cloudy skies and soft drizzle. It felt like the mountains were finally offering a reward for the grind. And that reward came in more than one form. First, langars set up by the kind-hearted Sikh community lined the way. Second,
In Langars, I got hot chai, crispy pakoras, free meals cooked over the love. It was priceless. I can't explain how much heavenly everything tasted in the mountain rain. So after a while I wore my raincoat, expected a heavy downpour, but nature had just teased me with few drops and instead gifted me breathtaking views. So rolling clouds over green valleys, mist kissing the treetops. You'll see it all in the upcoming shots here. So Joshimath 33 kilometers, Mana village. Mana is the last village of India and it is 81 kilometers from here. So let's see, might be I might be going to Mana as well. हाय गाइस, तो रात के बज रहे हैं 9, मैं 7 बजे जोशीमठ पहुंच गया था. नॉट एग्जैक्टली दिस इज़ जोशीमठ, क्योंकि मेरे को मेंटल और फिजिकल फिटीक बहुत ज़्यादा हो गई थी. तो जोशीमठ से 20 किलोमीटर्स पहले एक होम स्टे है, मैं यहाँ पे रुका हूँ और मैंने स्टेज देखने शुरू कर दिए थे. तो मैंने एक स्टे देखा, मुझे ठीक लगा एंड आई एम स्टेइंग हेयर टुनाइट. और इसका व्यू भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे सारे हिल्स दिख रहे थे उस टाइम पे. मैं सुबह आपको व्यू दिखाऊंगा. यहाँ पे मेरा रूम है. ऑल दो मैं जोशीमठ अब कल पहुँचूँगा, ठीक है. तो मेरा सिर्फ 20-25 मिनट्स का रास्ता रह गया जोशीमठ का. जोशीमठ पहुँचने के बाद आई एम प्लानिंग कि मैं कल ही ट्रैक स्टार्ट कर दूँ और मैं घांगरिया तक पहुँच जाऊँ. मैंने अभी जितने लोगों से बात करी है और इंटरनेट पे सर्च की है, आई गॉट टू नो कि घांगरिया तक का जो ट्रैक है इट्स 10 to 12 किलोमीटर्स. तो इट विल टेक मी अराउंड 5 to 6 आवर्स. तो मुझे सुबह निकलना पड़ेगा, जल्दी निकलना पड़ेगा. 2 लगेज मैंने रेडी करे हैं. एक जिसमें मेरा सारा एक्स्ट्रा सामान है जो मैं कोशिश करूँगा गुरुद्वारे पे सबमिट कर दूँ. एक मेरा जो शोल्डर बैग रहेगा जिस पे रेन कवर भी लग जाता है, और वो मैं अगले 2 से 3 दिन कैरी करूँगा घांगरिया टू हेमकुंड एंड टू वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है. और आज की बात करते हैं. आज की जर्नी बहुत अच्छी थी. सुबह मैं 4 बजे निकला और 7 बजे पहुँचा जोशीमठ. मेरी राइड थी 15 घंटे की. मैंने बाइक पे सोलो राइड इतना लंबा कभी भी नहीं किया. मैंने बाइक पे इतना राइड कभी किया ही नहीं, और सोलो राइड तो कभी भी नहीं किया. तो मेरा सोलो भी फ़र्स्ट टाइम था और इतना लंबी जर्नी भी मेरी ये फ़र्स्ट टाइम थी बाइक की, और मुझे बहुत मज़ा आया. प्लस मेरा जो व्लॉगिंग सेटअप के साथ मैंने एक व्लॉग बनाया है, तो जो मैंने आज व्लॉग बनाया ये व्लॉगिंग का भी एक तरह से मेरा डे 1 था. So you could like really measure me out of in all these parameters, in my vlogging, in my biking skills, or in my solo riding skills. You can judge me if you want, but for the next part of the journey I'll be covering up further topics, informative as well as my journey towards my destinations. So अभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, बहुत नींद आ रही है. खाना मैंने खा लिया है और मैं सोने जा रहा हूँ. बाय द वे, दिस इज़ द नाइट मोड ऑफ DJI Osmo Action 5 Pro एंड आई एम लविंग इट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप कि जर्नी आपको अच्छी लगी होगी. एंड गुड नाइट, साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग, दैट इज़ टुमारोज डे. बाय बाय. So thank you for watching this episode. Hope you liked the way how I have narrated my story. Also there will be further vlogs for the next part of the story. Trekking journey, Hemkund Sahib Darshan. So I suggest you to stay updated with this. हेलो. जय रघुवीर जय रघुवीर. कहत सब कोई कहत सब कोई. कहत सब कोई कहत सब कोई.